issuance of these instructions, there have been 52 dismissals of police officers from the rank of constables to inspector for being involved in corrupt practices, for being involved in malpractices, for having FIRs registered against them, or for prolonged absences from duty who are it has been found that our police is committed to a zero tolerance policy on corruption, and any elements in the police who are indulging in corruption will be acted against sternly. Recently, in a recent case in Faridkot, when a SHO was found involved in extortion of money, so appropriate legal action was taken and the concerned police officers were proceeded against as per law, and they have also been arrested in that case. So this message is very clear that black sheep in the police force are not going to be tolerated, and strict action as per law is going to be taken against them. At the same time, Punjab Police remains committed to deliver citizen-friendly police services to the people through online platforms using our Sanj platform, so that the interface between the police, the people don't have to go to the police station. Either it's through the Sanj window where a friendly atmosphere is there, or one can simply open the e-window and apply online. So we are following the model of Delhi Police for e-FIRs in motor vehicle thefts, where the complainants can either go to the Sanj center or open the portal, web portal, and submit a complaint, which would be pushed onto e-police station, state level e-police station, which will be notified by the state government. From there, an FIR would be auto-registered, generated, and pushed to the concerned jurisdictional police station. In a automatic manner, after completion of 21 days, if the case is not traced, then an untraced report would be generated and submitted in the concerned court of competent jurisdiction. For this, we are taking up the matter with the Honorable High Court for obtaining the approval of the Honorable High Court for completion of the entire process. And it is expected that in this financial year itself, by mid-March, this project would be launched by the Punjab Police. At the same time, Punjab Police has launched, in partnership with the India Police Foundation, a pilot project on community policing in the 3 districts of Ropar, Fatehgarh Sahib and Mohali, where third-party audit of police services being delivered to the people will be conducted, and research would be conducted on how to improve the delivery of police services. The areas which will be covered in the research project would include complaint and FIR registration, the police response, the police behavior and conduct, citizen services, and community engagement. Our anti-drug helpline, Safe Punjab, which was launched by the Honorable CM a couple of months back, with the WhatsApp, it's a WhatsApp chat box, 97791000200. I would encourage all citizens to submit complaints there. It is the identity of the informant is being kept absolutely anonymous, and in a partnership with WhatsApp, even media, videos, and other messages could be sent, which are then flagged with the concerned district. This is a round-the-clock manned helpline where anyone can give a complaint. This is mainly aimed at curbing the sale of drugs at the points of sale itself. That wherever there is public complaint of sale of drugs in some mohalla or some village, so that immediate action could be taken. It has been seen that there has been a lot of effective action, big recoveries, large heroin seizures, yet due to various factors, due to supply, because it's a complex phenomena, so there is supply side and demand side issues involved, that curbing the sale of drugs in villages and mohallas is of utmost priority to the state police. Hindi also? पंजाब सरकार की हाल की हिदायतों में, जिसमें एफिशिएंट, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं, उसके मुताबिक पंजाब पुलिस के सारे एसएसपीज और सीपीज ने अपने लेवल पर एक एक्सरसाइज करी है, जो पुलिस में जो ब्लैक शीप हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो एफआईआरओ में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ करप्शन एक्ट की एफआईआर दर्ज है या कोई सीरियस मिसकंडक्ट का चार्ज है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ
एज पर दी फैक्ट्स एंड केस, हर केस के फैक्ट्स के मुताबिक जिसमें जो एविडेंस है उस पर एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपना माइंड अप्लाई करने के बाद 52 पुलिस ऑफिशियल्स को अभी तक डिसमिस किया है इन हिदायतों के जारी होने के बाद, जिसमें कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के ऑफिसर्स हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है टुवर्ड्स करप्शन, कि करप्शन के खिलाफ कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई करी जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन कानून के मुताबिक लिया जाएगा। तो मैं पंजाब पुलिस के सभी ऑफिसर्स को यह कन्वे करना चाहता हूं स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कि करप्शन से गुरेज करें, क्योंकि आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस जो पुलिस सर्विसेज हैं उनको एक फ्रेंडली तरीके से सिटीजन्स का पुलिस से इंटरफेस कम करते हुए डिलीवर करने के लिए जो 7 सर्विसेज हैं, जिसमें इस वक्त 43 सर्विसेज जो है वो डिलीवर होती है, उनको उसका एम्बिट एक्सपैंड किया जा रहा है और ज्यादा सर्विसेज को इसके एम्बिट में लेके आएंगे विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ, 1 to 1.5 months, 31 मार्च से पहले EFIR जो है वो पंजाब में शुरू होगी रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर व्हीकल थेफ्ट, जिसमें कंप्लेनेंट अपने घर बैठ के पब्लिक जो वेब पोर्टल से कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं या हमारे सांझ केंद्रों में जाके कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, जिसे सांझ केंद्र या वो वेब पोर्टल जो है एक स्टेट लेवल का ई पुलिस स्टेशन नोटिफाई होने जा रहा है, जिसे हम पंजाब सरकार के साथ टेकअप कर चुके हैं। तो वहां पे वो FIR दर्ज होकर कंप्लेनेंट के पास पहुंच जाएंगी। साथ ही साथ जो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन है वहां पे वो FIR इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी जाएगी ऑटोमेटिक प्रोसेस के मुताबिक। अगले 21 दिनों में अगर वो FIR ट्रेस हो गई तो उसका जो है उसके मुल्जिम अरेस्ट हो गए तो उस पर एज पर लॉ कार्रवाई होगी। अदरवाइज एक ऑटोमेटिक अनट्रेस्ड रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जो कंप्लेनेंट के इनबॉक्स में पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें मानयोग हाई कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत है, जो हमने मानयोग हाई कोर्ट के साथ ये मसला टेकअप किया है उनकी अप्रूवल लेने के लिए, सो दैट ये जो कंप्लेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंसर्न कोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद भेजी जाएंगी और ये कैंसिलेशन या अनट्रेस्ड रिपोर्ट वहां से मंजूर होगी। और अगर इसके बाद ये प्रोसीजर होता है कि अगर वो केस ट्रेस हो गया तो वो दोबारा से वो जो इन्वेस्टिगेशन उसकी ओपन हो जाती है, क्योंकि कई बार इस तरह के केसेस बाद में भी ट्रेस हो जाते हैं। तो सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए जो एक रेप्यूटेड NGO इंडिया पुलिस फाउंडेशन के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने पार्टनरशिप करी है, MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत 3 जिलों में फतेहगढ़ साहब, रोपड़ और मोहाली में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें थर्ड पार्टी ऑडिट होगा जो पुलिस सर्विसेज जनता को डिलीवर कराई जा रही है कि उन किस लेवल की सेटिस्फैक्शन है, और हमारी FIR रजिस्ट्रेशन, पुलिस का रिस्पांस, पुलिस बिहेवियर और कंडक्ट, सिटीजन सर्विसेज और कम्युनिटी इंगेजमेंट को वो एसेस करेंगे। साथ ही रिसर्च करके इन्हें इंप्रूव करने के लिए हमें सुझाव देंगे। हमारी एंटी ड्रग हेल्पलाइन सेफ पंजाब, जो मानयोग मुख्यमंत्री जी ने कुछ महीनों पहले लॉन्च करी थी, ये एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है 9771000200, जो टोटली एनोनिमस हेल्पलाइन है, जिसपे कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट रखी जाती है और इस पे वीडियोस भी भेजे जा सकते हैं। इसका मेन मकसद है कि पॉइंट्स ऑफ सेल पे मोहल्लों में और गांवों में जहां पे ड्रग्स बिक रहे हैं या ड्रग्स बिकने की शिकायत आ रही है वो हमसे शेयर करी जाए। ये एक सेंट्रल हेल्पलाइन है और उसे फिर हम कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के थ्रू या जहां पे मिलीभुगत की शिकायत होती है वहां पे ANTF के थ्रू या किसी और यूनिट के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन करा के इस पे काफी FIR दर्ज हो रही। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा मीडिया के जरिए लोगों से, पंजाब के लोगों से, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि ड्रग्स के खिलाफ पॉइंट ऑफ सेल पे कारगर एक्शन किया जा सके। पंजाब पुलिस ने काफी इफेक्टिव एक्शन किया है, बड़ी रिकवरीज हुई हैं, हमारी हीरोइन की रिकवरी बहुत काफी ज्यादा है। 85% कन्विक्शन रेट है पंजाब में NDPS एक्ट की, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पर इसके साथ ही हमारा चैलेंज काफी बड़ा है, तो हम एक लोगों को साथ लेके, दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को साथ लेके ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ना चाहते हैं। वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। जो थर्ड पार्टी ऑडिट की आप बात कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी कौन है? इंडिया पुलिस फाउंडेशन, जो ये एक NGO है, तो वो उनके साथ हमने ये MOU साइन किया है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 52 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ FIR ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ FIR ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੂ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਮੈਨਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ देयर इज नो प्लेस फॉर सच अ ऑफिशियल इन द पुलिस फोर्स। तो इसमें डीएसपी या एसपी लेवल की भी है कंप्लेंट सर इसमें कंप्लेंट एसपी लेवल या डीएसपी लेवल हाँ नहीं ये हमने सभी से ये इसमें ऑफिसर्स भी हैं क्योंकि इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है जो गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए तो वो हम स्टेट गवर्नमेंट से हम ये इनके पास डेटा भी है तो 18 ऐसे हैं जो 10 DSPs और 8 SPs ये पिछले दिनों सस्पेंड भी किए गए हैं तो वो हम अभी